وادی چناب میں سڑک حادثوں میں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ حادثوں کی روک تھام میں ناکام رہی ہے۔ اس معاملے کو لے کر مقامی لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ آج ضلع ڈوڈا کے بھلیسا علاقے میں ایک منی بس لڑک کر کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے اور 4 لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق علاقے میں فوج نے ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے کیونکہ خدشہ ہے کہ گاڑی میں 10 سے زائد افراد سوار تھے۔ بھلیسا سے فردوس کھانے کی یہ خصوصی رپورٹ۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ تیز رفتار کی وجہ سے ہیوی گاڑیوں کے حادثے ہوتے ہیں۔ ڈرائیوروں کی لاپرواہی، تکنیکی خرابی اور خراب سڑک جیسے دیگر عوامل بھی حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ ڈرائیوروں کی شاید لاپرواہی کی وجہ سے یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا آج، تو اس میں ڈرائیوروں کی لاپرواہی ہے۔ جو ہماری ٹریفک پولیس ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پیسے کھا کے ڈرائیوروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، جو بھی ڈرائیور ہے، کوئی ٹریکٹر ڈرائیور اٹھ کے آتا ہے، میٹور چلاتا ہے، کوئی ایکو اٹھ کے ڈرائیور آ جاتا ہے اور وہ اپنی من مرضی سے، نہ اس کے پاس لائسنس ہوتا ہے نہ کچھ۔ تو میں یہاں کہیں نہ کہیں پولیس کی یہ ناکامی سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیے ان کو ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ ان کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں۔ سر جی ہمیشہ یہاں کے لوگوں کے ہم کے لیے تत्पर ہے اور ہم جتنی کوشش ہوگی ان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ چلا کس میں کتنے پیسنجر تھے سر، تو ہمارا کنٹینیو ریسکیو آپریشن چلا رہے گا سر۔ حادثے کا شکار منی بس ڈوڈا سے چلی بھلیسا جا رہی تھی۔ پائکل کھارا کے قریب یہ مسافر گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے بعد زخمیوں کی فوری اسپتال منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا۔ یہ جا رہی تھی ٹھاٹھی سے گندو، 8 سواری تھی، ایک ڈرائیور ایک کنڈکٹر۔ یہ کہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا؟ یہ پیاکل پانی کے اس سائڈ۔ وجہ کیا رہی ایکسیڈنٹ؟ تیز چل رہا تھا یا کوئی تیز کوئی کچھ نہیں تھا، پتہ نہیں اچانک کچھ ہوا۔ ہمارے پاس جو ہیں وہ لائے گئے ہیں 5 لوگ، 5 میں سے جو ایک براڈ ڈیڈ تھا اور ایک جو ہے مائنر انجریز ہیں اور 3 جو ہے سیریس لوگ ہیں۔ ان کو 3 لوگوں کو جو ہے ہم بائی ایئر جو ہے لفٹ کروا رہے ہیں۔ ابھی جو ہے ہم بائی ایئر شفٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جو 3 لوگ ہمارے پاس جو ہیں کو بائی ایئر کریں گے، ایک جو ہے ہم رکھیں گے اور ایک جو ہے ڈیڈ باڈی ہے وہ تو امیر وہ مارچری میں بھیج دیے۔ یہ کارا سے تھوڑا پیچھے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں 10 سواریاں ٹوٹل تھی، 10 میں سے 6 کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 3 کو ہم جموں ریفر کر رہے ہیں۔ بائی چاپر ہم نے ان کو جموں ریفر کر دیا، ایک JMC ڈوڈا میں ایڈمٹ ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ حادثات کے زیادہ تر واقعات میں پایا گیا کہ ناقص بسیں پہاڑی راستوں پر چلائی جاتی ہیں اور ان میں مسافروں کی بھیڑ رہتی ہے۔ لوگوں کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ کی مناسب سہولت نہیں ملتی ہے۔ پولیس سے خواہش کی گئی کہ وہ مسلسل چیکنگ کرتی رہے تاکہ شراب کے نشے میں گاڑی چلانے کے واقعات روکے جا سکیں۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ڈرائیوروں کو مناسب انداز میں ٹریننگ فراہم کرے اور یہ یقینی بنائے کہ گاڑیوں کی حالت کی باقاعدہ طور سے جانچ پڑتال ہوتی رہے۔ ادھر ایک تعزیتی پیغام میں غلام نبی آزاد، ڈاکٹر جتیندر سنگھ، بھدرواہ کے سابق MLA دلیپ سنگھ نے سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحومین کی روحوں کو سکون ملنے کی دعا کی۔ ان لیڈران نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ نیوز 18 اردو کے لیے فردوس کھانڈے کی رپورٹ۔ پولیس اسٹیشن کریری کو تخریبی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے اکسانے کی کوشش کی ایک مصدقہ اطلاع ملی تھی۔ کچھ نوجوانوں کو ملیٹنٹ سرگرمیوں میں ملوث کرنے کی کوشش اور انہیں ورقلانے والوں پر پولیس نے کارروائی کی ہے۔ کریری کے نوجوانوں کو ملیٹنٹ صفوں میں شامل کروانے کی کوشش پر میرا گنڈ کریری کے بشیر احمد بٹ، آتھورا کے وسیم احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے قبضے سے 2 چینی ساختہ گرینیڈ اور AK-47 رائفل کی 20 کارگر گولیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ پولیس نے کہا کہ اس سلسلے میں مزید گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں۔ 2 لوگ ہم نے پکڑے ہیں، یہ وہاں کے نوجوانوں کو ورگلانے میں اور ٹیررسٹ رینکس کو جوائن کرنے کے لیے اکسا رہے تھے اور انہوں نے اس حد تک بھی جو کچھ ایکٹیویٹی کر لی تھی کہ 1-2 لڑکوں کو یہ آلموسٹ سکسیسفلی کر چکے تھے موٹیویٹ۔
तो हमने जो है इन 2 लोगों को प्रिवेंट भी कर लिया मिलिटेंसी ज्वाइन करने से और इन 2 लोगों को पकड़ा और इनके फर्दर इनके शाख पे हमने कुछ असला बरामद भी किया है, 2 चाइनीज़ ग्रेनेड्स और 20 AK राउंड्स। इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है और देखेंगे क्या क्या लिंक्स आगे निकलते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा नेटवर्क जो है यहाँ से ख़त्म हो जाए और बारामूला जो है वो पीसफुल रहे। थैंक यू। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हथियार उठाने वाले कश्मीरी नौजवान तशद्दुद का रास्ता तर्क कर दे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गन किसी भी मसले का हल नहीं है। PDP सदर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए कश्मीर मसले को हल करने पर जोर दिया। महबूबा मुफ्ती ने आने वाले दिनों में अपनी गिरफ्तारी का भी अंदेशा जताया है। सार्क इजलास की पुरजोर वकालत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पाकिस्तानी हममनसब से बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर PDP कन्वेंशन में शिरकत की और रुकनियत साजी मुहिम शुरू की। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें इस वक्त तो बंदूक के खिलाफ माहौल है। जो तहरीक जिसमें बंदूक शामिल हो जाता है वो हमेशा नाकाम होती है। शायद कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर जम्मू कश्मीर के नौजवान बंदूक उठाए और हम दुनिया को बताएं कि ये दहशतगर्द हैं, इनका कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ बार बार जवानों से, बंदूक में अपनी जान मत गवाओ, बल्कि एक जमहूरी तरीके से बात करो। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, मगर आखिरकार दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यहाँ के लोगों की बात सुन के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से ये मरकजी सरकार PDP के पीछे लगी हुई है, हमारी पार्टी को तोड़ रही है, धमकाती है, लालच दे के हमारे लोगों को निकाल रही है और मेरे पीछे भी पिछले 2 साल से पड़ी हुई है कि कुछ मिले, इसके खिलाफ कोई करप्शन हो। जब कुछ नहीं मिला तो आप मेरी माँ को कॉल किया, हो सकता है मेरी बच्चों को भी कॉल करे, हो सकता है मेरे भाई को भी कॉल करे मुझ पे दबाव डालने के लिए, और लगता है अगर ये दबाव भी नहीं चला तो हो सकता है मुझे ही अंदर कर दे, कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करूंगी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाए और कुछ अच्छा हो, कोई सुलह सफाई हो, कोई अच्छा सिलसिला शुरू हो। वक्त हो गया एक छोटे से नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेके पुलिस में SI सिलेक्शन लिस्ट खारिज कर दी गई है। 2016 की सिलेक्शन लिस्ट खारिज कर दी गई है। CAT ने सिलेक्शन लिस्ट को खारिज कर दिया है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जेके पुलिस में SI सिलेक्शन लिस्ट को खारिज कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, लिस्ट को खारिज कर दिया गया है, मजीद क्या कुछ तफसीलात? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये एक्चुअली कुछ लोग थे, कुछ यूथ थे जिन्होंने CAT में एप्लीकेशन डाली थी और उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकली थी 2016 में SI की सब इंस्पेक्टर पोस्ट की JKP और JK आर्मर्ड पुलिस में, उसके खिलाफ उन्होंने केस दायर किया था। और आज उसमें जो ट्रिब्यूनल है जम्मू ब्रांच उनका CAT का, उन्होंने ये पाया कि उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गलतियां हुई हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके दायरे में ये सारा सिलेक्शन लिस्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और इसमें कुछ बेज़ातियां पाई गई हैं। और उसके चलते उन्होंने उस सिलेक्शन लिस्ट को जो हुआ था 2016 में जो निकला था उसको खत्म कर दिया, खारिज कर दिया है। और जो यहाँ पे जो वकील थे अभिनव शर्मा, उनकी तरफ से कई जो यूथ थे जो जिन्होंने इसमें एप्लीकेशन दी थी और उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा किया था, तो उनकी पैरवी करते हुए अभिनव शर्मा ने अपनी दलील रखी थी इस केस के बारे में। और फाइनली आज CAT ने पाया कि उसमें वजन है उस दलील में और इस सिलेक्शन लिस्ट को खारिज कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा जो है सेटबैक गवर्नमेंट को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिसने जो होम डिपार्टमेंट है और जिन्होंने ये सिलेक्शन लिस्ट निकाली थी उनकी और कई लोग जिन्होंने जो इस सिलेक्शन लिस्ट में थे, हालांकि उनके लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। लेकिन जो कोर्ट ने पाया कि जो CAT ने पाया कि कुछ जो रूल्स हैं उनके खिलाफ वर्जी हुई है, तो जाहिर तौर पर जो एग्रीड थे, जो लोग उसके खिलाफ गए थे, तो उनको लिए एक बड़ी राहत मिली है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलते गवर्नमेंट या होम डिपार्टमेंट किस तरह से इस
सिलेक्शन लिस्ट के बारे में क्या आगे बिल्कुल कदम समीर, उठाता है और किस तरह सिलेक्शन लिस्ट तो खारिज हो गई है। 2016 की ये सिलेक्शन लिस्ट है। मजीद इस पर किस तरह से और कितनी जल्दी कार्रवाई की जाएगी वो ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए कहा कि दफ़ा 370 की बहाली के नारे को लेकर वो अवाम को गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगी, जबकि पार्टी का एजेंडा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने, नौकरियों और दीगर अहम मामलात को बहाल करना है। पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी ने आज इन बातों का इजहार बोनेगाम काजी गुंड में मुनक़िद जलसे के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करने के दौरान किया। पार्टी की जानिब से यहाँ एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। हम हकीकत एक बयान कर रहे हैं कि 370 और 35 ये या सुप्रीम कोर्ट वापस कर सकती है या पार्लियामेंट कर सकता है, और मुझे लगता है ये हमारा फ़र्ज़ है कि सच बोलें, लोगों को धोखे में ना रखें। और हमारा जो कोर एजेंडा है अपनी पार्टी का है वो है स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। नौकरियों का जो तहफ़्फ़ुज़ करना था अपने नौजवानों के लिए वो हमने करके दिखाया। ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ इंशाल्लाह 95% वो भी करके दिखाया। तो मैं तो वही बात कहूँगा जो सच है, और मैं अपने लोगों में जब जा रहा हूँ तो यही पैगाम लेके जा रहा हूँ। अपनी पार्टी का यकीन है कि यहाँ अगर अमन बहाल होगा, हमारे नौजवानों के फ्यूचर की हम ज़्यादा ज़मानत, सेफ फ्यूचर की ज़मानत दे सकते हैं, उनकी जॉब्स और बाकी चीज़ों की ज़मानत दे सकते हैं। यही तो मुद्दा और मकसद है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर ने कहा है कि पंचायत की जानिब मुहिम और महंगाई के खिलाफ जगह जगह अवामी राब्ते मुहिम को पार्टी आम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क में अवामी इस्तेहसाल के प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं करेगी। वाल्टंगू कुंड काजी गुंड में आज वर्करों से खिताब करते हुए मीर ने कहा कि मुल्क में अवामी ख्वाहिशात और एहसासात को दबाया जा रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है। टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 एंड 3 के तहत इन्होंने लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए, जो उन्होंने पूरे मुल्क के सामने कहा कि जो आज तक नहीं हुआ था, गांव तक कुछ भी नहीं पहुंचा था, रास्ते में गायब होता था, अब हमने गांव तक सरकार को पहुंचा दिया। अब हर चीज़ उनका मैसर होगा, हर काम हल होगा। उसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिया है कि हम पंचायत टू पंचायत जाएंगे, देखेंगे जहां पर कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा, डेफिनेटली हम अप्रिशिएट भी करेंगे। मगर जहां बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ होगा, जहां लोगों के साथ एक मजाक बनाया गया होगा, वहां से हम प्रेजेंट सरकार को सुनाना चाहते हैं, जो आप मुल्की पैमाने पर कहते हैं कि बैक टू विलेज के जरिए से हमने लोगों के ज़बरदस्त इश्यूज हल किए हैं, मगर ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं हुआ है। ये मुल्की पैमाने पर हम ये वादी में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के अमल को बहाल करने के लिए आने वाले 10 दिनों में एक नई फिल्म पॉलिसी तैयार की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ये ऐलान श्रीनगर में मुनक्किदा 2 रोज़ा टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि ज्यादा तादाद में सयाहों की आमद के साथ ही मार्च 2021 में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 16.1% से घटकर अब सिर्फ 9% रह गई है। हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सियाहती शोबे के अहया के लिए श्रीनगर के SKICC में ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और टूरिज्म डिपार्टमेंट के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस हो रही है। मरकज़ के सेक्रेटरी बराए सियाहत अरविंद सिंह और LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने शमा रोशन करके कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मरकज़ी वज़ीर सियाहत प्रहलाद सिंह पटेल और LG मनोज सिन्हा वर्चुअल तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अच्छा सियाहती सीज़न रहने के बाइस बेरोज़गारी की शरह कम हुई है। उन्होंने आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि बेरोज़गारी की शरह 16.1% से घटकर 9% तक पहुंच गई है। LG ने जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी पर बात की और कहा कि कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग का अमल बहाल किया जाएगा। कोविड केसों में इजाफे का जिक्र करते हुए LG का कहना था कि मकामी लोगों की सेहत के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर प्रशासन एक नई फिल्म पॉलिसी लेकर के आ रहा है, जिससे हम कश्मीर के गोल्डन एरा को वापस सिल्वर स्क्रीन पर ला सकेंगे। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट तथा आवाम के स्वास्थ्य से बिना कोई समझौता किए हुए
हमने कई कदम उठाए हैं जिससे टूरिज्म का रिवाइवल हो सका है। जम्मू कश्मीर में जहां बेरोजगारी की दर 16.1% थी, वहीं 31 मार्च को जो आंकड़ा आया है 31 मार्च 2021 को वो नीचे गिरकर 9% हो गई है। मुल्क भर में टूरिज्म से जुड़े लोग जम्मू कश्मीर में सियाहती शोबे के फरोग के लिए इस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौर खोज करेंगे। मीडिया से मुंसलिक शख्सियात भी सियाहती शोबे में नई रूह फूंकने की इन काविशों का हिस्सा बनी हैं। मकामी सियाहती इदारों की नुमाइंदगी करने वालों को भी इस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात पेश करने का मौका फराहम किया जा रहा है। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि कोविड लॉकडाउन के बाद इंतजामिया की तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज हो गई है कि सियाहती सनत को फिर से किस तरह पटरी पर लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सर्दियों के मौसम में सयाहों ने बड़ी तादाद में वादी का रुख किया। Influx of tourism in winters in Kashmir and also in Jammu, in many parts of Jammu. We had winter sports as already pointed out, and ski lovers and people who wanted to see the snowfall and the charm of the place in winters. They started to throng in Jammu and Kashmir in various places, especially Gulmarg, Pahalgam and other places. सियाहती महकमे के ओहदेदारों ने गुज़िश्ता साल और इस साल आने वाले सयाहों के आदाद-ओ-शुमार की तफसील इस कॉन्फ्रेंस में पेश की। सिर्फ 2021 के पहले 3 महीनों में 92,875 घरेलू सयाहों ने हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाया। हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी बराए सियाहत अरविंद सिंह ने बताया कि मरकजी हुकूमत वादी में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए हर तरह की मदद फराहम करने को तैयार है। Used to be one of the focus areas of the Government of India, and the ministry under Swadesh Darshan and Prashad has sanctioned projects for rupees 562.79 crores for development of tourism infrastructure in the Union Territory. Most of these projects are in completion stage, and once completed will fulfill the vision of ministry of providing enhanced experience to visitors at all these destinations. मुल्क के बाकी हिस्सों में एक मुस्बत पैगाम भेजने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह वादी पहुँचें। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी यकीन दिलाया कि कोविड से बचाव की गाइडलाइंस को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज़ भट्ट की रिपोर्ट। हुकूमत हिंद के टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने कहा है कि मुल्क भर में कोविड केसों में इजाफे से फिलहाल जम्मू कश्मीर का शोबा सयाहत मुतासर नहीं होगा। अरविंद सिंह ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अरविंद सिंह ने कहा कि अगरचे कुछ मकामात पर कुछ प्रोग्राम मनसूख किए जा चुके हैं, लेकिन सयाहती प्रोग्रामों के हवाले से कश्मीर में गर्मियों का सीजन भी अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ठीक है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर में उतना उसके बारे में लोगों को चिंता नहीं है और इंतजामात हैं। टेस्टिंग हो रही है, एयरपोर्ट पे हो रही है, जगहों पे हो रही है। तो मुझे नहीं लगता, थोड़े दिन परिणाम होगा। मैंने कुछ होटल व्यवसायियों से बात की तो उन्होंने कहा कि कैंसिलेशंस हो रहे हैं लेकिन वो बैकअप कर पा रहे हैं। तो मुझे थोड़े बहुत कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए होगा ये ऐसा इसका असर, बट पूरे समर सीजन में इसका उतना विपरीत परिणाम नहीं होगा। और मुझे लगता है कि समर सीजन भी अच्छा होगा जैसे पिछला विंटर सीजन हुआ था। देखिए, जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट हेयर, इट इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर टूरिज्म इंडस्ट्री हैज सफर्ड। हमारे यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फॉलोड। जिस वक्त कोविड का वक्त था और बहुत मुश्किल दौर था, वी डिड नॉट वेस्ट टाइम एंड वी यूटिलाइज्ड इट फॉर बिल्डिंग कैपेसिटी। वी हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद द ट्रैवल ट्रेड एज वेल एज द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ट्राई टू डू सम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, जैसा एक छोटा सा क्लिप हेतु साहब ने वहाँ पे दिखाया भी फॉर कोविड प्रोटोकॉल्स। एक बात तो ये है, लेकिन इसके साथ साथ इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन। एवरी डे थिंग्स turn differently. Sometimes the graph goes up, sometimes it goes down. But let me tell you, the travel trade in Jammu and Kashmir saw an opportunity in COVID as well, after when the COVID position improved, and the opportunity was that there are a number of people in the country who have not travelled, who want to travel. There are so many people, because of the ban on international travel, who have not been who have not been able to go abroad. I think it's time for us. That is the reason why our travel has been, our industry, tourism was so successful during winters also.
जम्मू कश्मीर में कोविड के नए 991 केसों की निशानदेही की गई है। जम्मू डिवीजन से 499 और कश्मीर में 492 नए केसेस रोशनी में आए हैं। 24 घंटों के दौरान 418 कोविड मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। महकमे सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के 7,908 केसेस एक्टिव है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की छोटी दख्तर इल्तिजा मुफ्ती कोविड पॉजिटिव हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके इसकी तौसीक कर दी। मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने अवाम से अपील की है कि वो माह मुक़द्दस रमज़ान में इबादत के साथ साथ कोविड के क़वाइद की पासदारी भी करें। मुफ्ती नासिर का कहना है कि नमाजियों को चाहिए कि वो मास्क पहनकर इज्तिमाई इबादत के लिए जाएं ताकि कोविड जैसा मूजी मर्ज कोई नुकसान न पहुंचा सके। आपको बखूबी मालूम है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से आलमी इंसानियत बेहद परेशान है। खौफ व हिरास का माहौल हर तरफ है। रमज़ान मुबारक की खुसूसी इबादत में तरावी भी शामिल है। मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिए SOPs पे अमल करें, हाथों को सैनिटाइज़ करें, मास्क पहनते हुए मसाजिद का रुख करें। जहां आपकी ज़िंदगी बेहद कीमती है वहाँ दूसरों की सेहत का ख्याल रखना आपकी अखलाकी और मजहबी जिम्मेवारियों में शामिल है। होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता बिलखुसूस रेस्टोरेंट बिजनेस से वाबस्ता लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि रमज़ान के अवकात के दौरान हर कीमत पे अपने रेस्टोरेंट्स को बंद रखें ताकि रमज़ान का तक़द्दुस बहाल रखा जा सके। आखिर में मैं कौम की खुशहाली, अमन सलामती और तरक्की के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ। श्रीनगर शहर के मेयर ने मजहबी मकामात पर इंतजामात और ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। वो हबकदल की शीतलनाथ मंदिर को गए थे। कल नौराह त्यौहार के कबल यहाँ किए गए इंतजामात का जायजा लेने के मकसद से उन्होंने ये दौरा किया। जुनैद अज़ीम मत्तू ने मौके पर ही अहकामात जारी किए ताकि इजाफी सहूलियात और खदमात मुहैया कराई जा सके। इस मौके पर कॉरपोरेटर गिलकार नाजिर, जॉइंट कमिश्नर एडमिन एंड वर्क्स और SMC के सीनियर ओहदेदार मेयर के हमरा मौजूद थे। दूसरी जानिब जुनैद मत्तू खानकाए मौला भी गए और तज़ीन कारी के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम देने की हिदायत दी। यहाँ किए जा रहे तामीराती कामों को फौरी रुकवाने के हवाले से भी उन्होंने अहकाम जारी कर दिए हैं। रूहानी नुक्ते नज़र से काफ़ी अहम खानका में टूरिज्म डिपार्टमेंट की लापरवाही की जांच कराने की मेयर ने बात कही है। छतरहामा हजरत बल के लोगों ने आज श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में खामोश मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ये लोग एक शख्स फयाज अहमद डार की गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। डार 26 मार्च से लापता है। इन मकामी लोगों का इल्जाम है कि फयाज और उसकी अहलिया के बीच झगड़े उसके लापता हो जाने का सबब बने हैं। उन्होंने पुलिस से गुजारिश की कि वो इस मामले की जांच करे। गुजारिश करे राजबाग थाना वालों को कि उसकी बीवी को लाओ, वही बताएगी असली मकसद क्या था, वो कब निकल गया, उसके साथ क्या। लेकिन वो हर रोज़ उसकी बीवी उसके साथ लड़ाई कर रही थी। 12 साल हो गए इसकी शादी को, 12 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जैसे उनकी लड़ाई नहीं हुई है। वो केस भी किया, हमने फैसला भी किया 10-15 बार गाँव में, लेकिन वो उसे ठीक से रहने नहीं देती थी। अब हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारा बेटा जहाँ कहीं भी है उसको हमारे सामने ला जाए। ईजेक और वक्फ मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में मुश्तरका तौर पर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। एहतजाज करने वाले वक्फ मुलाजमीन 7वें पे कमीशन के निफाज की मांग कर रहे थे। मुजाहिरीन ने अपने मुस्तकिली के अलावा वक्फ बोर्ड की तश्कील नौ का मुतालबा किया है। EJAC के सदर मोहम्मद रफीक अमीर ने सवाल किया कि अगर ये एक ही मुल्क है तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग तरह के कवानीन क्यों नाफिज किए जाते हैं। उन्होंने LG इंतजामिया से भी अपील की कि वो इस मसले को हल करें। इनका इशू ये है कि पिछले 20 महीने से जब से यूनियन टेरिटरी बनी है वक्फ बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है। विद द रिजल्ट जो उनके इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं, बाकी मामला हैं, सारे के सारे पेंडिंग हैं। डिमांड ये है कि एक रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए वक्फ बोर्ड को ताकि डिसीजन मेकिंग हो और यहाँ पर जितने भी मामला और मसाइल हैं उनका हल निकल आए। दूसरा ये कि जो उनके एडाक हैं, डेली वेजर्स हैं, उनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए। तीसरा ये कि उनको 7th पे कमीशन के जुमरे में लाया जाए।
ये देरीना डिमांड है और हर सरकार ने इनके साथ वादा किया है, लेकिन आज तक वफा नहीं किया गया। जम्मू में आज हुई आग की 2 वारदातों के नतीजे में इमलाक को नुकसान पहुंचा है। गोल मार्केट गांधीनगर में आज सुबह जूते की दुकान और सलून में आग लग गई। फायर सर्विसेज वालों को आग पर काबू पाने में काफी वक्त लगा। इसी बीच दोनों दुकानों में रखी हुई अशिया और फर्नीचर मुकम्मल तौर पर जल गया। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लगी है। उधर जम्मू के SRTC यार्ड में भी आग के शोले नमूदार हुए, जिसके नतीजे में वहां रखे गए सामान को नुकसान पहुंचा। दोनों वाकयात में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। मजीद जांच के लिए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गोम अहमदपुरा के लोगों ने पीने की पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर टंगमर्ग में कायम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस के सामने धरना दिया। गोम अहमदपुरा के लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें महकमे जल शक्ति की जानिब से पीने के लिए पानी फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें आए रोज सख्त मुश्किलात का सामना है। गोम अहमदपुरा के लोगों ने अपील की कि उन्हें पीने का पानी फराहम किया जाए। हमारा इस वक्त चलता है वो वेल का पानी सर, उसमें इतनी गंदगी है, वो बिल्कुल पीने के ग्राउंड वाटर है, वो पीने के काबिल ही नहीं है। अब करते हैं, पिछले 3 साल से हम लगातार इनके पास आते जाते हैं, लेकिन ये कभी मानते नहीं है, अवॉइड करते हैं, हम लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, टालते हैं सर। ये बखूबी वो जानते भी है ये तमाम अफसर साहिबान, मगर फिर भी ये कोई गौर नहीं करते हैं, कोई प्रोसेस नहीं करते जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें कहा कि आपका जो ये स्कीम पास हो जाएगी और आपको पानी मिल जाएगा, मगर ये सिर्फ इनको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट उधर ये सबमिट करना है, वो भी उन्होंने नहीं किया। जबकि जल जीवन मिशन का दावा है कि हर घर में पानी पहुंचाना है। हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं है। हम ग्राउंड वाटर ले लेते हैं, जिसमें TDS तकरीबन 500 TDS है उसमें। इसलिए हमारी गुजारिश है हमारे जल्दी से जल्दी ये मसला हल किया। इंशाल्लाह जो ही हमें गो हेड की सिग्नल आएगी तो ये वाला प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। ऑन प्रायोरिटी हम फिलहाल इसको टेक अप करेंगे। मीनवाइल देखते हैं जब तक वो चीज़ हो जाए, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं थ्रू टैंकर सर्विस और थ्रू अदर PSTs पब्लिक स्टैंडिंग पोस्ट के थ्रू माध्यम से। जम्मू कश्मीर मिशन यूथ के मिशन डायरेक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में पुलवामा को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। शाहिद इकबाल चौधरी ने आज पुलवामा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात की। उन्होंने कहा कि पुलवामा में एक कॉल सेंटर का क़याम भी अमल में लाया जाए, ताकि पढ़े लिखे नौजवानों को मुल्क की बेहतरीन कंपनियों में रोजगार फराहम हो। यही है कि यूथ की एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हो, जो भी उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई किताब लिखना चाहता हो, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता हो, कोई रिसर्च करना चाहे, तो उसमें जो भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो हम करें और एक इनेबलिंग ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए, कोई अपना बिजनेस खोलने के लिए या बाकी जो भी उनके एस्पिरेशंस हो उसमें डेफिनेटली काम किया जाएगा। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DC साहब की सदारत में काफ़ी अच्छी हमें सपोर्ट मिल रही है। तो पुलवामा को एज मॉडल डिस्ट्रिक्ट हम आने वाले महीनों में देखना चाहेंगे कि कॉल सेंटर इस्टेब्लिश करना, जहाँ बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, बाहर की कंपनीज यहाँ आ सकें और हमारे बच्चे जो वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड यहाँ से बाहर जाते हैं उनको यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर बनाने का प्रोग्राम है, जिसमें सारी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं या कि उनकी एजुकेशन, काउंसलिंग और प्लेसमेंट को लेकर एक्टिविटीज़ हैं, सारी उसमें जम्मू कश्मीर LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के गर्ज से अनंतनाग के काजी गुंड और मीर बाजार यात्रा ट्रांजिट कैंपों का दौरा किया। उन्होंने यहां पर यात्रियों के क़याम के हवाले से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इससे कबल बसीर अहमद खान ने रामबन में भी कायम यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया था। इस मौके पर बसीर अहमद खान ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग और डिप्टी कमिश्नर रामबन को यात्रा के हवाले से ज़रूरी हिदायत दी। मुकर्ररा वक्त से कबल यात्रियों के ट्रांजिट कैंपों में रिहाइश की गैर मामूली सहूलियात फराहम करने के काम पूरे करने की उन्हें हिदायत दी गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा है कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क की तस्वीर बदल गई है, जबकि मुल्क माशी बदहाली के साथ साथ इक़्तिसादी बहरान का भी शिकार हो गया है। अनंतनाग के दमहाल कोकरनाग इलाके में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद पीरजादा ने इन बातों का इजहार किया। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वहाँ बीजेपी और उसके अलायंस, मुझे लगता है कि लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं हर वक्त तैयार हूँ, हमारी पार्टी हर वक्त तैयार है, लेकिन इनको पहले तहस नहस करने हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। डिलिमिटेशन का मतलब है इनको जहाँ कांग्रेस मजबूत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है,
या और कोई पार्टी जो सियासी पार्टी है वो मजबूत है तो वहाँ इनको तबाही करने की छोड़कर रखनी है और यही डिले। जिला पुलवामा के मोरन इलाके में हजरत मीर सईद हुसैन अंद्राबी का सालाना उर्स आज निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया है। सालाना उर्स के मौके पर आस्तान आलिया पर शब ख्वानी की गई। आज सुबह से ही पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी। 2 साल से चल रही कोविड वबा के सबब उर्स की तकरीबात को महदूद रखा गया है। शी होप सोसाइटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर के इश्तराक से इमदादी सामान तकसीम किया। जिला गांदरबल के वायल में मुनक्किदा प्रोग्राम में माजूरीन की मदद के लिए मुख्तलिफ आलात और सामान के अलावा मशीनें तकसीम की गई। तंजीम ने समाज के तय अपनी खिदमात की तफसील पेश की। इस दौरान DDC चेयरपर्सन ने लेजर थेरेपी मशीन का इफ्तिताह किया। वादी में अपनी नवियत की ये चौथी मशीन जिला गांदरबल में लगाई गई है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।